So like what we did, the summary for the section 5.2, we're going to repeat the same exercise for 5.3, and of course in the next one we'll do in 5.4. The idea of breaking it up is that so that when you do one of the summaries and you realize that there is one concept which has really not settled in your head, तो आप वापस जाके मेन वीडियो देख सकते हो ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट फिर से एक बारी रिकॉल हो जाए एंड इट गेट्स सेट इन योर हेड. These summary videos will also be really helpful आपके एग्जाम से जस्ट पहले, because by that time you will be able to you will need that kind of comfort for you to know कि अच्छा मुझे सब कुछ आता है. So summary sheets, summary videos are really helpful for that time as well. And of course because हम उसको बहुत ज़्यादा question answer form में कर रहे हैं, so it would really help you settle your head. So अब हम कर रहे हैं अपना public sector growth. So what we are doing in this particular section is we are trying to justify why, or we are trying to find out reasons why public sector has grown over time. When we say public sector has grown over time, then obviously everybody has their own perspectives, na? So for example, if I were to ask you, why do you think milk sells for X amount of rupees? Somebody will say cost of production hai. Somebody else will say kyunki, people fit it as a need. That's why. Somebody else, some third person will say no, because milk is supposed to be used in so many items. It has a lot of cost of production wala element. Mithaiyon mein use hota hai, isme use hota hai, usme use hota hai. Whatever. The idea is every person has their own perspective, right? इसीलिए जब हम ऐसे बात करते हैं कि पब्लिक सेक्टर ग्रो क्यों हुआ ओवर टाइम में, उसमें भी हमारे पास हर एक का अपना पर्सपेक्टिव. व्हेन आई से हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, आई मीन टू से इसके अंदर हम कर रहे हैं बेटा डिफरेंट मॉडल्स. जब हम कोई भी मॉडल करते हैं तो वो मॉडल जो है वो किसी ना किसी इकोनॉमिस्ट ने किसी तरीके से निकाला होता है, ईदर थ्रू सर्वेज जिन्होंने डेटा स्टडी करके उसके थ्रू निकाला होता है, और दे हैव गिवन सम इक्वेशंस डायग्राम्स उसके अकॉर्डिंगली करा होता है, या फिर उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन दी होती है और उसको जस्टिफाई करा होता है विद एविडेंस. हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे कि हमें ना ये वाले मॉडल्स डेप्थ में नहीं करने, हमें सिर्फ ओवरव्यू से करने, जैसे हेलीकॉप्टर व्यू नीचे का थोड़ा थोड़ा करना है. So we're going to only stick to our main points, which is what we've done in the main videos also, but we are going to just spend a little bit of time in recalling these again. So different models we are doing. The first model we are doing is called a development model. Development models. Actually not development model, but development models. So basically जो हमारे development models अभी तक बने हैं, उसके अंदर क्या है कि हमारे पास we are trying to understand how development is related to public ego. इसके अंदर हम different models के अंदर नहीं जा रहे. We are not talking about different development models which exist. The idea is simply that कि जैसे जैसे development हुई है, development मतलब जैसे जैसे हमारा हम बोलते हैं ना underdeveloped country, developing country, developed country, that development. जैसे जैसे development होती है country की, वैसे वैसे हमारा जीडीपी तो चेंज होता ही है, बट वैसे वैसे मेरा पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो भी बढ़ रहा है. सो वी आर सेइंग कि जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट होती जा रही है वैसे वैसे हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो भी बढ़ता जा रहा है. तो हम ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्यों बढ़ रहा है, व्हाई इज दैट हैपनिंग. सो डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री जैसे जैसे हो रही है वैसे वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है. तो obviously different economists have different things, but we are not studying that. It's not in our syllabus, so why should we study that? हम सिर्फ इसके मेन फीचर्स हाईलाइट कर रहे हैं. फर्स्ट मेन फीचर, जब हमारी कंट्री अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होती है. अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मतलब अभी इससे पहले वो रॉ एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, लेकिन अब वो अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आ रही है, वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइजेशन में आना शुरू हो रही है. इनिशियल स्टेजेस, राइट, इट्स द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. जब इंडस्ट्रियलाइजेशन किसी भी कंट्री में शुरू होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होती है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे जाता है, तब क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है हमारी वो मूव करती है रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ. वो मूव करती है रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ. जब वो अर्बन एरियाज में मूव करती है बेटा, तो अर्बन एरियाज में उनको चाहिए होता है इंक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स चाहिए, वहां पे घर चाहिए. सी रूरल एरिया में तो लोगों ने अपने घर बना रखे होते हैं,
और वहां पे क्योंकि खेत होते हैं लोगों के, अब वो खेतों को छोड़ के इंडस्ट्रीज के पास मूव करना चाहती हैं। इसका मतलब इंडस्ट्रीज जहाँ पे सेटअप होंगी, लाइक इमेजिन आज से मे बी 100 साल पहले अगर लोग जब दिल्ली मूव करे होंगे तो दिल्ली में तो कुछ था ही नहीं, तो उनको सेटअप करने के लिए रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ चाहिए होगा ना। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जब चाहिए होता है तो इसीलिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। तो जब डेवलपमेंट मेरी शुरू हुई होती है किसी भी कंट्री में, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती है किसी भी कंट्री में, तब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है, फर्स्ट स्टेप, राइट। उसके बाद क्या होता है कि हम सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में पहुंच जाते हैं, वी मूव टू सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है कि जब हमारा जैसे जैसे अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब है जैसे जैसे लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज में सेट होते जाते हैं, वहां पे पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। तो पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज इंक्रीज। जब पॉपुलेशन बढ़ती है अर्बन एरियाज की, तो सब लोग जो शिफ्ट होते हैं गांव से शहरों में, उनको सबको नौकरियां तो मिलती नहीं है, which is why in the urban areas there are increased theft, there is increased crime, there is increased pollution। तो मतलब एक्सटर्नैलिटीज आ जाती है ना सारी, पोल्यूशन की एक्सटर्नैलिटी आ गई, थेफ्ट आ गया, क्राइम आ गया। इसीलिए अब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा सोचो, अब पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ेगा टू मैनेज दीज एक्सटर्नैलिटीज। पोल्यूशन के लॉज बनाने हैं कि भाई पोल्यूशन इतना होगा, यहाँ पे होगा, ऐसे होगा। कोई तो बनाएगा ना, कौन बनाएगा? गवर्नमेंट। पब्लिक एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा, लोगों को हायर करेगी, फिगर आउट करेगी कितना पोल्यूशन कहाँ पे होना चाहिए, स्टफ लाइक दैट। थेफ्ट रोकने के लिए, क्राइम रोकने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए पुलिस चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, जस्टिस चाहिए, कोर्ट्स चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो सेकंड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में आ जाता है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होती जाती है वैसे वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर और बढ़ा। अब जब हम थर्ड स्टेज में आते हैं, मतलब जब हमारी कंट्री डेवलप्ड हो जाती है, जो थर्ड स्टेज होती है डेवलपमेंट की, व्हेन द कंट्री हैज नाउ बिकम डेवलप्ड, तब हमारा क्या होता है, तब हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, क्योंकि जो हमारा मेन इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमने सेटअप कर दिया है। जो हमारा मार्केट फेलियर रिक्वायरमेंट होता है, विच इज योर पोल्यूशन, थेफ्ट, क्राइम एक्सेट्रा, वो भी कम हो जाता है। लेकिन अब लोगों को क्या चाहिए? अब लोगों को चाहिए एक्विटी। अब कंट्री डेवलप हो गई है, नाउ पीपल एस्पायर फॉर अ सिमिलर लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, फॉर अ सिमिलर लेवल ऑफ इनकम, विच इज व्हाई वी वांट इक्विटी। इक्विटी चाहिए, देन द कंट्री इज देन ड्रिवन बाय एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांसफर पेमेंट्स। मतलब फ्री स्कूल, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, एटसेट्रा एटसेट्रा, फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये सब चीजें प्रोवाइड करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा ना, टैक्सेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इक्विटी के लिए भी टैक्सेस बढ़ते हैं। सो दिस इज व्हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर गोज अप इन द थर्ड stage as well. So the first model, guys, is in a summarized manner. What is the first model? The first model is called a development model. In the development model, we are simply saying that जैसे जैसे एक हर एक स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट चेंज होती जाती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता ही है, कम नहीं होता। Which is why we know that every country, most countries go through the growth cycle, development cycle, which is why they also have increased public expenditure throughout their growth cycle or development cycle, right? This was, guys, your model one. Model one is development models. Model two. Model two is called Wagner's law, given by Wagner, Wagner's law. अच्छा, so somebody had asked me कि मैम इसमें से questions कैसे आते हैं? Indirect नहीं आते, direct आते हैं। They will ask you, explain Wagner's law, justify development models. What does Baumol-Moss law state? Why is the political model, how is political model successful in explaining the increased public expenditure? Stuff like that. Directly model का नाम दिया जाएगा, आपको model explain करना, and that's it. That is all there is. So the question is direct. The idea is that you have to remember these many models. वो तो करना पड़ेगा, उसका कोई choice नहीं है. Okay. सो वैगनर्स लॉ, वैगनर बोलता है कि हमें दिख रहा है कि जीडीपी का जो प्रोपोर्शन है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर मेरा पहले जीडीपी 100 था और मेरा पब्लिक एक्सपेंडिचर 10 था, तो मेरा प्रोपोर्शन जो था वो 10% था जो मैं स्पेंड करती थी। अब जीडीपी अगर मेरा 100 है, तो जीडीपी मेरा 100 से 100 की जगह बढ़ जाता है थोड़ा सा, लेट्स से 150 हो गया है,
तो मेरा पब्लिक एक्सपेंडिचर उठ के लेट्स से 50 हो गया है, तो परसेंटेज इज ऑलमोस्ट 33.3%. So my percentage of public expenditure in GDP has been rising over time. Has been rising over time. तो वैगनर ने कुछ ज्यादा किया नहीं था, उससे ज्यादा मॉडल वॉडल नहीं दिया. उसने बोला है कि ये जो मेरी थ्योरी है ये 3 कंपोनेंट्स पे बेस्ड है. एक, क्योंकि हमारे पास क्यों हुआ है, ही जस्ट एक्सप्लेनिंग इट. व्हाई ही सेइंग कि जैसे जैसे मेरा जीडीपी बढ़ता है ना, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंट्री बढ़ जाता है. मतलब as we develop new things, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द कंट्री होता है, इट मीन्स दैट कि हमारी कंट्री जो है वो प्रोग्रेसिवली कॉम्प्लेक्स हो रही है. आप एग्जाम्पल लो, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, साइबर क्राइम बढ़ता है, जैसे जैसे हमारी जो बैंकिंग है वो और ज्यादा ऑनलाइन आना शुरू हुआ, नए नए ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आने शुरू हुए. अमेजोन पहले तो नहीं था, राइट. उसके आसपास हमारे जो ब्रेकेज ऑफ लॉज होता है, क्राइम कमिट होता है, उन सब के लिए भी तो नए लॉज बनाने पड़ते हैं ना. इसलिए वैगनर ने बोला कि जैसे जैसे हमारी कंट्रीज ग्रो करती हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली कंट्रीज की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती हैं तो उसका लीगल स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ता है. डेवलपमेंट चाहिए होता है लीगल स्ट्रक्चर के अंदर. जब लीगल स्ट्रक्चर के अंदर हमें डेवलपमेंट चाहिए होता है तो ऑटोमेटिकली हमारे को लॉ एंड ऑर्डर पे ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा. विल नीड मोर एक्सपर्ट्स, विल नीड मोर लॉज, वी नीड मोर ways of enforcing those laws. Because of that, public expenditure goes up. सेकेंड, हमारे पास जब अर्बनाइजेशन होता है तो ऑटोमेटिकली हमारी एक्सटर्नैलिटीज इंक्रीज होती हैं. तो जैसे जैसे हमारे पास डेवलपमेंट होगा, जैसे जैसे हमारा जीडीपी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली अर्बनाइजेशन विल आल्सो इंक्रीज. सो जीडीपी जब बढ़ता है दैट मीन्स अर्बन एरियाज में लोग ज्यादा आके रहते हैं, तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ता है. जब अर्बनाइजेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से एक्सटर्नैलिटीज बढ़ती हैं. अब जब एक्सटर्नैलिटीज बढ़ेंगी तो ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल करने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, एज वी स्पोक अबाउट इन द डेवलपमेंटल मॉडल्स. नंबर 3, वैगनर ने बोला कि हमारे पास जो पब्लिक दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली. नंबर 3 इज द वन दैट वी वांट टू फोकस ऑन बिकॉज दिस इज द वन व्हिच हैज टू बी अंडरस्टूड, राइट. वैगनर ने बोला कि जो पब्लिक सेक्टर गुड्स होते हैं ना, जो पब्लिक सेक्टर गुड्स होते हैं, they have a high income elasticity. What do we mean by that? जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ता है वैसे वैसे my demand for these public sector goods also rises. Public sector goods also rises. And I'll give you classic examples here, okay? So stay with me, just understand this. So to understand how this works is, imagine जब हमारी इनकम बढ़ती है तो पहले क्या होता है, how does a person start thinking about public goods? So पहले जब उसकी इनकम बढ़ती है, when a person starts earning more, then they want to facilitate for themselves. वो घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, अच्छी जगह रहना चाहेंगे, अच्छा एजुकेशन अपने बच्चों को देना चाहेंगे. That is how normally it goes. When the income reaches a certain threshold, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है, तब आपको लगता है कि यार मैं अपने टैक्सेस ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप टैक्सेस ज्यादा दे रहे हो. बिकॉज लॉजिकली दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव बीन सेइंग सो फार, कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो इक्विटी में बिलीव करती है, इसलिए जब हमारी इनकम बढ़ता है तो हमारे टैक्सेस भी बढ़ते हैं. जब टैक्सेस बढ़ते हैं तो हमें लगता है हम गवर्नमेंट को इतना पे कर रहे हैं, हमारे को एक्चुअली कुछ फैसिलिटीज तो मिलनी चाहिए ना. सो वी वांट अ बेटर एजुकेशन, better healthcare, better recreation, everything from the government. And don't think about it in terms of India. Think about it in terms of foreign countries. Say India ke andar we rely on public ki jagah, private hospitals, private education, private everything. But in the foreign countries, there's no concept, or most people don't end up going for private education. Most people go for public education because the normal, there is the private education is only for the elitists, which means कि उनका जो public education system है, उनका जो केंद्रीय विद्यालय एंड डीएवीज हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उनको डीपीएस या उनको स्प्रिंगडेल्स या उनको बाकी स्कूल्स में जाने की जरूरत नहीं है. दे एक्चुअली गो टू द पब्लिक स्कूल ओनली. तो जब इनकम एक कंट्री का एक लेवल पे आ जाता है, दे डिमांड बेटर फैसिलिटीज, दे वांट बेटर एजुकेशन, दे वांट बेटर रिक्रिएशन, व्हिच मींस दैट जैसे जैसे हमारा
एक कंट्री डेवलप होती जाएगी, वो डेवलप स्टेज पे आ जाएगी, तब गवर्नमेंट को ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा टू प्रोवाइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, विच इज वाई वी से दैट जैसे जैसे हमारी कंट्री ग्रो करती है वैसे वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी ग्रो करता है। तो अभी तक हमने दो मॉडल्स करे हैं, डेवलपमेंटल मॉडल्स और वैगनर। दोनों के अंदर हमने ये बोला है कि जैसे जैसे हमारी कंट्रीज का जीडीपी बढ़ेगा वैसे वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारे को कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए जैसे जैसे जीडीपी बढ़ता है वैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ता है, क्योंकि डेवलपमेंट में हमने बोला था फॉर डिफरेंट रीजंस एंड वैगनर्स में हमने बोला फॉर डिफरेंट रीजंस। माइंड यू, हमने सिर्फ ये थियोरीज पढ़ी हैं, हमने ना इसके अंदर इसका आर्ग्यूमेंट ये करा है कि भाई ये डेटा कहाँ से उठाया गया, ये ऐसा क्यों सोचते हैं, इसका क्या एविडेंस है, हमने उसकी बात नहीं करी। हमने टेस्ट ही नहीं कंडक्ट किए इन थियोरीज को प्रूव करने के लिए। तो अगर कोई इकोनॉमिस्ट उठ के बोलते हैं कि भाई मेरे पास ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से ये ट्रू नहीं है, तो वो 5 रीजंस भी वैलिड होंगे, क्योंकि इसको बैक करने के लिए हमने कौन से टेस्ट करे हैं। There are no equation, there are no tests which have been done, so we don't know. Okay, the third model, model number 3, is Baumol's law. Baumol's law. So Baumol जो है वो ये कहता है कि हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर होता है वो रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव होता है। जो पब्लिक सेक्टर होता है वो रिलेटिवली लेबर इंटेंसिव होता है। मैं सिर्फ आपके साथ गाइस यहाँ पे समराइज कर रही हूँ, मेन जो है वो हम लोगों ने अपना मेन वीडियोस में करा हुआ है, सो आई एम जस्ट डूइंग इट इन अ वेरी कंसाइज मैनर। ओके, सो पब्लिक सेक्टर इज वेरी वेरी लेबर इंटेंसिव, और इसीलिए जब हम प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हैं एक पॉइंट के बाद नहीं बढ़ सकती। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास आई टॉक अबाउट एजुकेशन, if I need one teacher per classroom, I need one teacher per classroom ना। जितना मर्जी हम उस टीचर को ट्रेन कर दे, ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक टीचर 50 की जगह 100 बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देगी उसी 1 घंटे में। नहीं कर सकती, पॉसिबल नहीं है, देयर लिमिटेशंस टू इट। सो विच इज वाई जो हमारा सेक्टर पब्लिक सेक्टर होता है वो बॉमल बोलता है कि हमारा वो लेबर इंटेंसिव होता है। आप हेल्थ केयर का एग्जाम्पल ले लो, टीचिंग इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ले लो, इन सब चीजों में। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो हमारा कैपिटल इंटेंसिव होता है। सो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो क्लॉथ फैक्ट्री है, मिल्क फैक्ट्री है, या फिर हमारी पेन्स फैक्ट्री, एनी फैक्ट्रीज यू सी आर और कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन जो लेबर है वो लेबर से वो पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक में मूव कर सकती है काफी हद तक, बिकॉज लेबर मोबाइल होती है, राइट। तो होता क्या है कि हमारे पास जो प्राइवेट सेक्टर है इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती रहती है, इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती रहती हैं। जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होती रहती हैं तो ऑटोमेटिकली व्हाट हैपेंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी of labor increases. Now you'll ask me why. You see, अब आप सोचो कि मेरा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो है K इंटू एल। पहले कैपिटल था आपका 2, तो आपके पास था y इज इक्वल टू 2L, तो मेरी प्रोडक्टिविटी ऑफ ईच लेबर वाज 2। अब कैपिटल हो गया 3, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया तो कैपिटल बढ़ गया मेरा, तो मेरा जो y हो गया दैट बिकम्स इक्वल टू 3L। तो मेरी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीजेस ना बेटा। तो जैसे ही मैंने अपना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करा, मेरा कैपिटल बढ़ा, उसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ गया। एंड वी नो कि हम जो लेबर को वेज देते हैं वो देते हैं दैट इज रिलेटेड टू, दैट इज एक्चुअली प्राइस इनटू एमपीएल, बट इक्वेशन याद करने की जरूरत नहीं है, दैट इज रिलेटेड टू हिज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड विच लॉजिकली मेक सेंस। जितना प्रोडक्टिविटी होगा उतना वो प्रोड्यूस करके दे रहा है ना, उसके बेसिस पे हम उसको वेजेस देंगे। तो अगर एमपीएल बढ़ गया तो वेजेस बढ़ गई, एमपीएल बढ़ा तो वेजेस बढ़ी। अब जब वेजेस बढ़ी तो प्राइवेट सेक्टर तो उसको मान सकता है कि हाँ ठीक है यार, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए तो फर्क नहीं है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के लिए तो वो उसके वजह से हुआ है। लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जब वेज बढ़ा तो ऑटोमेटिकली उसका तो कॉस्ट बढ़ गया ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी हुआ, तो इसलिए उसके प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आया। प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ा तो कॉस्ट बढ़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई, राइट, तो कॉस्ट हमारा बैलेंस आउट हो जाता है। लेकिन लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है हमारा, पब्लिक सेक्टर जो है, वहां पे तो हमारा कॉस्ट बढ़ गया ना, कॉस्ट बढ़ गया तो मतलब मेरा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया।
हो सकता है कि मेरा जो गुड है मैं उतना ही प्रोवाइड कर रही हूँ जितना पहले, आई एम प्रोवाइडिंग स्टिल द सेम पब्लिक सेक्टर आउटपुट एज कंपेयर टू अर्लियर, बट माई expenses have gone up, which is why my public expenditure has gone up. This is Baumol's theory. Baumol ने पूरा का पूरा ये जो बेस किया, इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं. There are some negatives attached to this theory. हमने सारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन करा, हमने डिमांड एंड सप्लाई की तो बात ही नहीं करी, पॉलिटिकल एंगल की बात नहीं करी. और ये भी है कि हो सकता है कि हमारे पास जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर भी तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए, जैसे कि हमने देखा भी है, बेटर मेडिसिन, एजुकेशन भी हमने देखा है, बेटर स्कूल्स, better technology. So it's not really something that can be proven very easily. Okay. Model number 4. Model number 4. Political model. Political model. Very important, very important. In fact, मतलब हमारा 5.3 में से this is one of the more important models, क्योंकि इसके बाद तो हमारे पास एक ratchet effect है, and then our 5.3 section closes. Political model. Political model is basically it is trying to capture कि हमारा जो public preferences हैं जिनको ज़्यादा expenditure, so you know let's not even say it like that. Summarize कर रहे हैं तो model तो actually आपको पता है, तो थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं. हमारे को अगर ज़्यादा public expenditure देना है तो tax बढ़ेगा. Let me write it that way. So if I want to increase public good, matlab I want better facilities from the government, everything, then that means the government will have to increase the taxes. When the government increases the taxes, then my private good consumption falls. तो public good बढ़ाने के लिए private good कम करना पड़ेगा, and vice versa. So which means there's a trade-off between public good and private good. अगर मैं एक बढ़ाऊंगी तो दूसरा कम करना पड़ेगा, and vice versa. Right? इस मॉडल को इलस्ट्रेट करने के लिए we say there are H consumers. हमारे पास H consumers हैं, ठीक है, जिनके पास इनकम जो है that ranges between 0 to y hat. ओके, जिनकी एवरेज इनकम जो है, एवरेज का क्या मतलब होता है, मीन इनकम. मीन इनकम is let's say is actually mu. So if I think about it from another perspective, let's say in an economy there are 5 people who are earning an income of 0, 1, 2, 3, 4. So person 1 earns 0, person 2 earns 1, and so on and so forth. So their total income is 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So total income is 10. So average income is 2. So mu is 2. H is 5. So total will be 2 into 5, which is 10, which is what we just did, which is okay, right? So basically मेरे पास H consumers हैं और हर एक के पास कुछ इनकम है जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है. मुझे पता है मेरा जो एवरेज इनकम है वो है म्यू. ओके, और जो टैक्सेस हैं दे आर प्रोपोर्शनल टैक्सेस, व्हिच इज टी. प्रोपोर्शनल टैक्सेस मतलब क्या, परसेंटेज ऑफ एन इनकम. तो अगर मेरे पास इनकम का लेट्स से प्रोपोर्शन इज 10% एज टैक्स, so everybody pays a 10%, which means my tax becomes 10% of 2.2 for this economy, right? So उसमें एक individual I जो है, I is one individual. So for an individual called I, we say UI, utility of the person I, will be his entire income plus some function of G. So since I've explained this before, this should come naturally to you, but still let me explain it. Private good का जो price है वो हम ले रहे हैं as a numeraire, जैसे आप microsem 3 में लेते थे, which is that private good का price is equal to $1. ठीक है, उसके बाद तो मेरे पास सारा का सारा income बचेगा. मैंने पब्लिक गुड के लिए जो दिया टैक्स वो दिया, उसके बाद जितना सारा का सारा इनकम बचा उससे मैंने क्या कंज्यूम किया, प्राइवेट गुड. So if yi is my total income, then and I'm paying TS taxes, then the amount of money which is left with me is 1 minus T of yi, na? So if I pay 10% as taxes, I'm left with 90% of the income. इस टैक्स की वजह से गवर्नमेंट मुझे पब्लिक गुड दे रही है in the form of G. This is the amount of G, which G is some kind of a function for me. It could be log G, G square, whatever, depending on my preference of the G. So which is how we get this function. We also understand that ये जो G से मेरा function आया,
तो जैसे जैसे मैं जी बढ़ाऊंगी वैसे वैसे मेरा टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ेगा. By increasing g, ceteris paribus, मतलब सब कुछ constant है, my total utility goes up, but it goes up at a decreasing rate. So which means that g follows the function like it normally does. आप पानी पीते जाओगे, जितना पीते जाओगे तो आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम आप बोलोगे ना कि यार ठीक है और नहीं पिया जा रहा. सो ईच सब्सिक्वेंट ग्लास ऑफ वाटर गिव्स यू लेसर एंड लेसर यूटिलिटी. सेम कॉन्सेप्ट, ईच सब्सिक्वेंट यूनिट ऑफ जी गिव्स यू लेसर एंड लेसर यूटिलिटी, राइट. और हमें ये भी पता है, लेट मी टेक इट टू द नेक्स्ट पेज, और हमें ये भी पता है द टोटल अमाउंट ऑफ जी, द टोटल अमाउंट ऑफ गुड दैट कैन बी प्रोवाइडेड इज T मैंने कलेक्ट किया एज अ टैक्स परसेंटेज, दिस इज अ परसेंटेज from H consumers. Mu is the average income. So my average income was 2. Number of consumers were 5. So my total income was 10. Total income was 10. इसका एक proportion as a tax हमने लिया, which is 10%. So the tax collected is 1 rupee. So that is that. The total, this is the absolute amount of tax. This T is the tax percentage. So जितना tax होगा उतना ही तो government expenditure होगा ना बेटा. So which is how I get this? I can write it as T to be equal to G upon H mu, which means I can write my function as, जो मैंने अभी last page पे लिखा था, ui is equal to 1 minus T की जगह G upon H mu into yi plus some function of G. Some function of G. I can open my bracket, yi minus G upon H mu yi plus B of G. Ui, let's differentiate it. Del ui upon del yi, 1 minus g upon h mu, right? Which means it has no meaning. मुझे क्या करना है yi का? yi तो मैं maximize ही नहीं कर सकती. Sorry for that. I will maximize my g. So you know why I included yi is because some people had asked me this doubt earlier कि मैम हम yi से क्यों नहीं differentiate कर रहे? बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आई वांट टू फाइंड आउट दैट पॉइंट वेयर माय यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड. व्हाई आई इज गिवन टू मी, मैं उसको मैक्सिमाइज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इनकम गिवन है. मैं जी को इसलिए मैक्सिमाइज कर रही हूँ, जी से अपनी यूटिलिटी इसलिए मैक्सिमाइज कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जी में और प्राइवेट गुड में ट्रेड ऑफ है. तो जब मैं जी बढ़ाऊंगी तो मेरी यूटिलिटी बढ़ेगी, लेकिन मेरा प्राइवेट गुड कम होगा तो यूटिलिटी कम होगी. तो मैं एक वो स्वीट स्पॉट निकालने की कोशिश कर रही हूँ जहां पे मेरा जी बैलेंस हो जाए कि मेरा प्राइवेट गुड इतना कम भी ना हो कि मेरी यूटिलिटी उतनी कम हो और मेरा जी इंक्रीज होने से उतनी यूटिलिटी मिल जाए और एक्स्ट्रा मिल जाए. तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू. सो जीरो डिफरेंशिएशन आपको आती है -1 yi upon h mu plus b dash g, right? This becomes my equation. So I get b dash g is equal to yi upon h mu. This becomes my equation. Okay, this becomes my equation. What does this mean? जब मैंने g को बढ़ाया तो g को बढ़ाने से ये मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला. एक्स्ट्रा बेनिफिट मतलब मार्जिनल बेनिफिट. ये मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला विच इज मार्जिनल बेनिफिट, राइट? जी को बढ़ाया जब मैंने तो ऑटोमेटिकली मेरा प्राइवेट गुड फॉल करा. क्योंकि प्राइवेट गुड फॉल करा तो इसलिए यूटिलिटी फॉल करी, तो उसकी वजह से इतना मेरा नुकसान हुआ, मतलब इतना मेरा प्राइवेट गुड कम हुआ. सो दैट इज व्हाई दिस बिकम्स माय मार्जिनल कॉस्ट. और जहां पे मार्जिनल बेनिफिट और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होता है वहां पे हम कंज्यूम करते हैं, which is this level. So B dash G is equal to yi plus h mu. What does it tell us? It tells us that as yi increases, marginal cost increases. जब मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करेगा तो मुझे मार्जिनल बेनिफिट भी इंक्रीज कराना है, मतलब मुझे बी डैश जी भी इंक्रीज कराना है. बट बी डैश जी तब इंक्रीज होगा जब जी फॉल करेगा, क्योंकि मेरे पास डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना बेटा. तो जब मेरा जी फॉल करेगा तभी तो बी डैश जी राइज करेगा.
So think of b dash g as, because it's diminishing, like under root g. Think of g as under root g. So then b dash g is equal to 1 upon 2 root g. So if g is, let's say, 5, then g is, let's say, 4, then it is 1 upon 2 into 2, which is 4, which is 0.25. अब मुझे चाहिए कि ये अमाउंट जो है ये बढ़े, because I want b dash g to go up. If I want b dash g to go up, then that means I will have to reduce the g ना. जब मैं g को 1 कर दूंगी, then becomes 1.2 into 1, which is 0.5. So by reducing g, my b dash g rises, which means that जब मेरा income बढ़ता है तो automatically मुझे public good कम करना चाहिए. This is what the political model says. Why is this so important for us to understand? Because जो भी हमने previous models करे हैं, your developmental model, Wagner's law, उसमें हमने बोला था कि हमारा जो G है वो बढ़ता है. Public expenditure rises when income rises. Wagner said that, right? Political model said that, ना? Baumol's law ने भी यही बोला था कि हमारा मतलब जो public expenditure है वो बढ़ता है when there is a increase in income. But political model says it doesn't happen like that. हमारे पास जब income बढ़ता है तो actually हमारा G जो है वो fall करना चाहिए, right? हाँ, इसका explanation उन्होंने दिया था कि हमारे पास जब Y बढ़ता है तो मेरी income बढ़ रही है. मेरी इनकम बढ़ रही है तो मुझे पता है कि अगर मैं टैक्स ज्यादा पे करूंगी, then a larger portion of my income is going into taxes, which is why I say यार ठीक है ना, मुझे नहीं पब्लिक सर्विसेज चाहिए, मैं खुद अफोर्ड कर लूंगी, I'll use it for the private, but मुझे ज्यादा टैक्स नहीं पे करना, तो आप जी कम करो यार, मुझे नहीं चाहिए. That is what the political model says. The political model says that as income rises, people say we will provide for ourselves. We don't need you to give it to us. So you don't please provide it because we don't want to pay higher taxes. ओके. पॉलिटिकल मॉडल जो है वो ये भी बोलता है कि अब ये तो हमारा एक तरीका हो गया, बट डिफरेंट पीपल विल हैव डिफरेंट डिमांड्स ना, बिकॉज पुअर विल से मोर जी, बिकॉज व्हेन वाई आई फॉल्स, उल्टा चलो ना, व्हेन वाई आई फॉल्स एमसी फॉल्स, एमडी हैज टू फॉल, व्हिच मींस बी डैश जी हैज टू फॉल, व्हिच मींस जी हैज टू राइज, व्हिच मींस पुअर विल हैव अ डिफरेंट डिमांड फॉर जी एंड रिच विल हैव अ डिफरेंट डिमांड फॉर जी. How do we figure out who's important? By majority voting. I'm not getting into it here because you've done it earlier. Or you do median. Median is also again something you've done earlier in your SEM 4 micro. So, let's not go there. So median का ये होता है कि median just basically means that if median is equal to mean, then that means कि आपके पास जो income है वो evenly distributed है. तो इसका मतलब मेरे पास ज्यादा disparity of income नहीं है. लेकिन अगर मेरे पास ज्यादा फर्क है, if there is a big difference between median, if there's a big difference between median, then that means that there's a higher inequality because you have a higher skewness. Not important. Political model का सबसे important part यही था. Okay. The last model, guys, then becomes our model. Which one is this? Model 4. So our last model is model 5, which is called the ratchet effect. Ratchet effect. Ratchet effect is again very simple. तो वो बोलता है कि भाई हम लोग जो हैं वो ज्यादा टैक्सेस नहीं पे करना चाहते. पीपल डोंट वांट टू पे हायर टैक्सेस, राइट? उनको पता है कि हमारे को टैक्सेस पे करके बेनिफिट मिलता है, लेकिन हम बेनिफिट तो लेना चाहते हैं, लेकिन हम ज्यादा टैक्सेस नहीं पे करना चाहते. और गवर्नमेंट जो है वो स्पेंड करना चाहती है पैसे, क्योंकि गवर्नमेंट का जो प्रेफरेंस होता है वो ये होता है कि जैसे जैसे वो पैसे स्पेंड करेगी वैसे वैसे वो अपने आप को रीइलेक्ट करा सकती है. बिकॉज बाय स्पेंडिंग द मनी द गवर्नमेंट इज एबल टू show to people that we care and they hope to get re-elected. So दोनों चीजें बड़ी opposite हैं. Government say spend more, people say spend less, because if you spend less then you take less taxes from us and we are okay. So ये हमारा दो opposite forces होते हैं. इसलिए जो हमारा equilibrium level है वो डिफाइन होता है. Ratchet effect is actually very simple. वो बोलता है कि हमारे पास एक बैलेंस है जो अचीव हो जाता है. So लोगों ने बोला कम टैक्स कम पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने बोला ज्यादा टैक्स ज्यादा पब्लिक एक्सपेंडिचर, दोनों कंपीटिंग फोर्स करती हैं आपस में कोलाइड,
और किसी तरीके से एक लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर पे वो लोग आ जाते हैं। वो क्या लेवल होता है, वो कैसे आता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब क्या होता है ड्यूरिंग सम काइंड ऑफ अपहीवल, वॉर्स, anything like typically wars, typically any calamity, your earthquakes, whatever anything which happens, वो क्या करता है, वो calamity जो है वो हमारा पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। तो रैचेट ये बोलता है, रैचेट इफेक्ट ये बोलता है कि अब जब ये बढ़ गया ना, तो गवर्नमेंट उसको वापस नीचे नहीं लेके आ पाती, देन इट गेट्स सेट टू अ न्यू लेवल। अगेन कोई अपहीवल आएगा, वो बढ़ जाएगा, अगेन इट विल गेट सेट टू अ न्यू लेवल। वो इसलिए नहीं कम कर पाती क्योंकि एक तो लोगों को पता लग जाता है कि गवर्नमेंट के पास इतना पैसा है। देयर आर 3 reasons that the government is unable to reduce it. Number one, people get used to the new amount, right? And for them this is the norm. उनको लगता है यही तो नॉर्मल है यार, कम कैसे कर सकते हैं, ये तो नॉर्मल है, इतना तो हमें मिलना चाहिए, इतना तो पब्लिक एक्सपेंडिचर होना ही चाहिए, बिकॉज when we get used to like good highways, better highways, we can't go to back to broken roads, na, that kind of a thing. सेकेंडली, अब जब हम लोगों ने अपहीवल में ज्यादा एक्सपेंस किया तो डेट्स इनकर किए, अब वो डेट्स इनकर किए तो उनको रीपे तो करना पड़ेगा। रीपे करने के लिए गवर्नमेंट विल हैव टू मेक श्योर दैट इट कीप्स taking that much taxes and then keep investing it to earn more revenue to give back to the pay back the debts. Number 3, जब अपहीवल होता है, कोई कैलामिटी होती है, तो गवर्नमेंट्स जो हैं वो प्रोमिसेस करते हैं अपने लोगों को। These promises to the taxpayers have to be fulfilled. So which is why ये promises को fulfill करने के लिए हमारा public expenditure बढ़ जाता है। Also, there's something called an inspection effect which happens after an upheaval. After an upheaval, government जो है वो अपनी priorities देखती है, अपनी positions देखती है, और इसीलिए वो अपने आप फिर री नोटिस करती है कि यार हम लोगों ने इस चीज पे तो इन्वेस्ट ही नहीं किया। सो फॉर एग्जाम्पल, अर्थक्वेक जब आता है तब गवर्नमेंट को सडनली लगता है कि यार हमारे को अर्थक्वेक प्रिपरेशन के लिए बेटर प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वी नीड अ डिजास्टर मैनेजमेंट विच इज स्ट्रॉन्गर, दे विल स्पेंड मनी ऑन इट। वॉर होती है, they think we need to invest in nuclear power or we need to invest more in the peacekeeping of the society, they will invest money on that. So इंस्पेक्शन हो जाता है ना, पता लग जाता है डिजास्टर दोबारा नहीं होना चाहिए, तो वो इंस्पेक्शन की हो जाती है जिसकी वजह से और पब्लिक एक्सपेंडिचर हो जाता है। So this was your why the public expenditure has been rising. We in the next section talk about excessive government. हमारे पास government जो है वो इतनी ज्यादा क्यों है? Why are we spending more than what is required? Is something that we do in the next, not like next class, but you do this, you do the videos, come back, and we do the summary in the next one, right?